Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. In today's session, we will discuss about the topic communication, which is very mandatory for any human being. And in this session, I am going to discuss about the basic concept and understanding of communication, their elements of communication, classification of communication, and their effectiveness of communication. So this is very essential part for any human being, and in today's present scenario, communication plays an effective role. We will also discuss features of effective communication, non-verbal communication in Indian context, and role and impact of media in the communication. Objectives. Here you can easily go through the components of communication process, appreciate how communication can be made more effective, and significance. You are able to significance of non-verbal communication in the Indian context, and you are able to go through the understanding of mass media. So first of all, there is a need to understand the concept of communication, which is very essential, and it plays a very vital role in present scenario, whether it is human being and for at any workplace. Day-to-day life, it plays a very vital role. Without communication, we can't survive. So there is a need to be an effective communication. So first of all, communication. Basically, communication is a Latin word which derives from word communis. Means to share, to express your ideas. So, communication वो प्रोसेस है जिसमें आप एक एनवायरनमेंट में लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं. Communication is the mean to convey your ideas to another. It is an interaction process. It is a channel between a sender and receiver. So, communication वो प्रक्रिया है जिसमें आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं. जब हम इंटरैक्ट करते हैं, we use language. आप एक लैंग्वेज यूज करते हो, एक भाषा के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, कन्वर्जन होता है उस आइडिया का, एटीट्यूड का, जो एक पर्सन से जो कि सेंडर होता है और वो रिसीवर तक पहुंचता है. तो कम्युनिकेशन एक तरीके का एक पर्सनल प्रोसेस है जो कि ऑकर होता है बिटवीन पीपल, सो दैट एक बिहेवियर में चेंज लाता है. सो कम्युनिकेशन इज अ टू-वे प्रोसेस which try to convey the ideas, and it is represented by a sender and received by a receiver. Basically, in communication, we can easily express our thoughts, our views, our ideas, our messages, our emotions through words and actions. या तो आप बोल करके या आप व्यक्त करके अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक तरीके का इम्पोर्टेंट टूल है जो कंट्रोल करता है, मोटिवेट करता है पीपल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. सो कम्युनिकेशन इज वेरी एसेंशियल टूल. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज डे टू डे लाइफ. नाउ बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. सबसे पहला है कम्युनिकेशन एक टू-वे प्रोसेस है. टू-वे प्रोसेस है, इट मीन्स कि एक पार्टी आपकी सेंडर है जो कि आपके मैसेज को सेंड करती है, एंड द अनदर वन इज रिसीवर जो कि उस मैसेज को रिसीव करता है. देयर हैज टू बी अ मैसेज. इसमें कुछ मैसेज होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सेंडिंग योर आइडिया टू एनी पार्टी, to another party, it means you are expressing your ideas, you are conveying your messages to another party. It means message plays a very important role. Message should be there. Commonness of understanding, it indicates कि जिस
जिस टारगेटेड ऑडियंस को या जिस पर्टिकुलर पार्टी को आप अपने मैसेज को व्यक्त करना चाहते हैं उसमें कॉमननेस होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो जापानीज लैंग्वेज, देन इट मीन्स कि जो आप रिसीवर जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी जापानीज को जानने वाला होना चाहिए. देन यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद दैट पार्टी. बट अगर वो पर्सन जापानीज को नहीं जानता है, जापानीज लैंग्वेज को, देन आपका और उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्ले नहीं करेगा. सो कॉमननेस होनी चाहिए जिससे कि आप दोनों की बातों को वो इजीली आपस में दोनों इंटरेक्ट कर सके और समझ सके. सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमननेस फैक्टर सबसे बड़ा एलिमेंट प्ले करता है. मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल. जो भी इंफॉर्मेशन आपने ट्रांसमिट करी है, जो रिसीवर है वो उसके रिस्पॉन्सेस को उस फॉर्म में रिसीव करे जिससे कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आए. जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि उसमें रिलेटिवली चेंज आए, वो आप दूसरे पीपल के बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हो. उस तरीके की इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट करो. जो भी आपका इंफॉर्मेशन देने का तरीका है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मीन्स योर बॉडी लैंग्वेज, योर पिच, योर गेस्चर्स, योर आई कॉन्टैक्ट और एक्सप्रेशन. सो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प ऑफ वर्ड्स या गेस्चर के थ्रू आप अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो. नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन. जब आप वर्ड को यूज करते हैं एज अ टूल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स. वर्बल कम्युनिकेशन जिसको कि आप ओरली कम्युनिकेशन कहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन. जब आप शब्दों का यूज करके दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों से बात करते हैं तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो ओरल भी हो सकता है और लिखा भी जा सकता है. इसमें मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना चाहिए. मीन्स जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं अपनी शेयरिंग पार्टी को, उस मैसेज को उसको समझ में आना चाहिए. सो इंटरेक्शन होता है पीपल्स का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, फ्लो होता है एंड डायरेक्शन मिलता है. कुछ कॉमन फॉर्म्स है वर्बल कम्युनिकेशन के, लाइक कॉन्वर्सेशन, बातचीत, स्पीच, बोलना, लेटर लिखना, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एक्सेट्रा. सो दीज आर some examples of verbal communication. Non-verbal communication. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके आई कांटेक्ट, आपका तरीका, जो आपकी डिस्टेंस है, जो भी बॉडी ओरिएंटेशन है, ये सारे नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट है. ये आपको अनदर पार्टी की इंप्रेशन क्रिएट करने में, वर्बल एलिमेंट जो कम्युनिकेशन का है इसको हेल्प करने में असिस्ट करते हैं. रीइंफोर्सेस होते हैं कि क्या चीजें हुई हैं, कैसे आप अपने इमोशंस को, इंटरपर्सनल एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये सारे आपके कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन है. इससे आप अपनी पावर को, पोजीशन को, अपने डोमिनेंस लेवल को, अपने अफेक्शन को, रिस्पेक्ट को शेयर कर सकते हैं. जिन चीजों के साथ, पार्टीज के साथ जिनका इंटरेक्शन है, जो भी आपकी क्लाइंट्स हैं जिनसे आप चीजों को मैनेज करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कैसे आप अपने आप को सेल्फ प्रेजेंट करेंगे, इन सारी चीजों के लिए जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो एक इंडिविजुअल के लिए, उसके बिहेवियर के लिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रोक्सिमिक्स. प्रोक्सिमिक्स में आप सोशल डिस्टेंस involves the use of social distance between people. सोशल डिस्टेंस को इन्वॉल्व करके आप पीपल से अपने मैसेज को पास करते हैं. हैप्टिक्स में आप दूसरे चैनल से भी कम्युनिकेशन जो आपका है वो उनसे आप इंटरेक्ट होकर के एक कल्चर जो फंक्शन इन्वॉल्व करते हैं कल्चर के लिए, वो आपकी हैप्टिक्स का पार्ट है. एक टच देते हैं फाइनली, जिसमें आप दूसरे कम्युनिकेशन के चैनल्स को भी इन्वॉल्व करके अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को कन्वे करते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हर जगह है, चाहे क्लाइंट डीलिंग में हो, चाहे कलीग से बात करना हो, पीयर से बात करना हो, सबऑर्डिनेट्स को मैसेज पास करना हो, अब जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंफॉर्मेशन है उसको डेलीगेट करना हो. मैसेज को कन्वे करने के लिए जो भी सीज हैं, सबसे पहले क्लैरिटी के प्रिंसिपल्स को कंसिडर करना चाहिए. मैसेज आपका हमेशा कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जो आपका कंटेंट है वो
परफेक्ट होना चाहिए। मीन्स जो भी आप कहना चाहते हैं वो चीजें क्लियर फॉर्म में होनी चाहिए, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, कंसाइज होना चाहिए मैसेज, और इस तरीके से आप कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव बना सकते हैं। बातचीत हम डे टू डे लाइफ में सभी करते हैं, नॉर्मल बातचीत, बट जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इफ इट डील्स विद फॉरेन क्लाइंट्स, so it means we have some perfect knowledge of communication. It means there should be an effective communication required. तो जो तरीका है उसमें आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिससे कि आप फर्दर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अपने डोमेन्स में इम्प्रूव कर सकते हैं। एसेंशियल हो गया है कि आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं वो फर्दर प्रोग्रेस के लिए आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वेरी ऑफन कभी कभी ऐसा होता है कि मैसेज में डिस्टॉर्शन हो जाते हैं, जिसको आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। उसमें जो पर्सन है जिसने टास्क को सेंड किया है, मैसेज को पास किया है, उस पर्सन तक आते वो मैसेज में जिसमें डिस्टॉर्शन हो गए। तो इस तरीके से जो एक्चुअल मैसेज था उसमें डिस्टॉर्शन हो गया, उस मैसेज का कन्वे वहां पे हुआ ही नहीं। तो ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें डिस्टॉर्शन को दूर करना है, जो भी बैरियर्स है उसको दूर करना है। पीपल हमेशा सेलेक्टिव होते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर परसेप्शन, क्या वो उनको देखना है, क्या उनको सुनना है, ये उनकी नीड्स पे, उनकी आवश्यकता पे, उनके एक्सपीरियंसेस पे, उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे और उनके मोटिवेशन लेवल पे इफेक्ट करता है। जो भी ह्यूमन बीइंग है वो कम्युनिकेशन से ज्यादा अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज, अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उस पे कंसीडर करता है, और इसलिए वो चूजी है। आजकल जो भी पीपल्स हैं उनमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है, जिससे कि वो इनकमिंग इंफॉर्मेशन को आप ओवरलोड कर सकें। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, उस कैपेसिटी को यूज करें। जब आप इमोशनल है, लाइक कभी आप एंग्री है, कभी आप सैड है, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, देन वी आर लाइकली टू मिस आउट सम इंफॉर्मेशन। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम उस फेज में अपनी जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम मिस आउट कर देते हैं। सो while sending any message we should follow normal pitch। जो भी आपकी क्लैरिटी है, जो कंसाइजनेस है, उन चीजों को फॉलो करते हुए आप अपने मैसेज को पास करिए टू द रिसीवर। वर्ड मीन्स डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल। एक वर्ड का मतलब डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट होता है। जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है एज से, जेंडर से एंड उसके कल्चरल बैकग्राउंड से। फीचर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। कॉमन फ्रेम में जो बेसिकली इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है उसमें सेंडर और रिसीवर को इंटरेक्ट करना चाहिए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मदर स्पीक्स टू हर चाइल्ड शी यूजेस वर्ड व्हिच आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड्स वोकैबुलरी। जब माँ अपने बच्चे से बात करती है, उसके आइडियाज को शेयर करती है, अपने आइडियाज को, तो उन्हीं वर्ड्स का, उन्हीं वोकैब का यूज करेगी जो उसके बच्चे की वोकैब में शामिल होगा। अगर बच्चा नॉटी है या तो उसके लिए कंसर्न टोन होगी, जब बच्चा अनवेल होगा तो उसके लिए कंसर्न टोन होगी, जब नॉटी है तो स्कोल्डिंग टोन में वो बात करेगी। सो इट मीन्स कि कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मीन्स कॉमन पैटर्न है। जिस लेवल के ऑडियंस को आप टैप करने जा रहे हैं उसी लेवल का सब्जेक्ट मैटर आपके पास होना चाहिए। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज फोकस ऑन द कॉमन पैटर्न ऑफ रेफरेंसेस। फीचर्स क्या हो सकते हैं कॉमन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए, आपसी समझौता। अगर कंटेंट्स आपके कम्युनिकेशन के इफेक्टिव हैं, इट मीन्स दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सेंडर और रिसीवर में। फॉर अ फार्मर, एक किसान के लिए, हाउ द स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स इज ऑफ नो इंटरेस्ट एज हिज कंसर्न इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ सीड्स। अगर कोई फार्मर है जिसको शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, उससे आप उसके बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर उसका कंसर्न किसमें होगा? क्वालिटी ऑफ सीड्स में, मैन्योर में होगा कि कैसे क्वालिटी में, क्लाइमेट में क्या चेंजेस आएंगे जो उसकी फसल को अफेक्ट करेंगे। सो जिस पैटर्न पे आपको अपने कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करना है, सेम लेवल के साथ आप अपने कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करिए, कन्वे करिए। कॉमन लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स है वर्बल कम्युनिकेशन का, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंश्योर करती है। कॉमन एनवायरमेंट, पीपल डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सो इसलिए जो भी एनवायरमेंट है वो उनको
कॉमन प्रोवाइड किया जाए, जो भी बैकग्राउंड का लेवल है उनका वो सेम होना चाहिए। Features on the basis of verbal communication, there are some tips, means we have to improve our language by reading and listening. We have to work on voice modulation, tone and pronunciation. We have to think then speak, think twice before speak. ये जो ये saying है famous, उसी के according जब आप बोलिए पहले सोचिए then बोलिए। Features, do not speak fast or too loudly. बहुत ज्यादा तेज मत बोलिए, बहुत ज्यादा लाउड मत बोलिए, बहुत जल्दी मत बोलिए। Learn about culturally sensitive words. कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो एक कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव वर्ड्स को अवॉइड करिए। फीचर्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, in order to improve your body language, because body language is a mirror of any personality. So, while using your tone, while using your body language, please consider these tones. Please consider these points. First of all, keep the appropriate distance. Touch only if required or necessary. Maintain eye contact, means perfect eye contact should be there. In an interview situation, look presentable and confident. Non-verbal communication. Social factors in non-verbal communication among Indians, culture factors such as hierarchy, authority plays a definitive role in communication. Some interpersonal relation, position of authority, age and gender determine the distance to be maintained between two peoples. Indians values their personal space. जो भी आपके non-verbal communication का part है, उसमें Indians में cultural factors, age, hierarchy ये एक important role play करते हैं। उन interpersonal relation में उनकी authority, उनकी age, उनके जेंडर के बेसिस पे आप कैसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, कैसे वैल्यू को स्पेस देते हैं, इस तरीके से जो देयर इज लिटिल फिजिकल डिस्टेंस विद फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के फीचर्स हैं। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है आज के वर्तमान एरा में। इसके थ्रू आप एजुकेट कर सकते हैं, लाइफ्स को एनरिच कर सकते हैं, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, एकेडमिक के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, एंड पब्लिक के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। सोशल और कल्चरल वैल्यू दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन इस मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं, उनको आप कम्युनिकेट करें, बट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट के थ्रू। बायसनेस को रिमूव करने की कोशिश हम कर सकते हैं, जो भी बैरियर्स हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं, जो भी आप रॉन्ग र्यूमर्स को लीड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो भी प्रेजुडिस होते हैं, जो कम्युनिकेशन कम्युनिटीज के अगेंस्ट में जो हैट्रेड चलाए जाते हैं, वायलेंसेस को रेज करते हैं, उनको आप रिकूप कर सकते हैं। जो भी मीडिया है जो रिस्पेक्ट नहीं देता प्राइवेसी को एक इंडिविजुअल की, या पब्लिश कर देता है प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, वो आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को जनरेट करता है। जो भी मीडिया है वो वल्गर या ऑब्सेंस मटेरियल अगर प्रोवाइड कराता है तो वो भी मीडिया के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। These are some questions, like with the help of relevant examples, define communication and the elements, how verbal and non-verbal communication play an important role, explain the different features of effective communication. So it's the time to wrap up the session. I hope you enjoyed the session. Thank you.